Remember how Lord Ram he goes to Lanka by crossing a river on a bed of rocks. Okay, Yes. यहाँ पे when he gets out of the train, they make sure एक proper scene है where they show that he steps on a bed of rocks, entering Okay. Lanka. गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. Welcome to Desi Deep Dive. And first of all, we'd like to thank all the members who supported us last time by seeing the QR which we had shared during Lucky Bhaskar. So thank you guys. It really made our days कि चलो भाई इतने टाइम से मोनेटाइजेशन के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ तो ऐसे मिल गया. सो दिस वाज वेरी, आई मीन आफ्टर कितने महीने हमने, आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर में शुरू किया था. हाँ. तो सितंबर से कंपेयर करने के सितंबर से कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 महीने हो चुके हैं. तो 7-8 महीनों के बाद पहली बारी अकाउंट में पैसे आते देखे हैं थ्रू दिस कंटेंट. तो इट गेव मी अ मैसिव किक. एंड आई रिमेंबर आई वाज लिटरली स्लीपिंग. मैं गाड़ी में आ रहा था, मैं तेरा फ़ोन आया है और तू जिस तरीके से तूने बोला है ना भाई, वो एक एड्रेनलिन शॉट मिला है मुझे. एकदम जाग गया था मैं उस टाइम पे कि ओ हो क्या बात है, शुरू हो गया. सो थैंक यू गाइज वंस अगेन. ऑफ कोर्स हम रिवील नहीं करेंगे किस किसने पैसे दिए, वो नहीं करना, वो डेटा थोड़ी लीक करना है हमें. बट यू नो, जो लोग भी देख रहे हैं उनको पता है कि किस किसने भेजा है. तो थैंक यू सो मच गाइज. एंड अगेन जिसको भी दोज हु वांट टू सपोर्ट अस, दोज हु एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लीविंग द QR. सो फील फ्री टू contribute whatever you want to, जो भी बस की है. again that's what I'm saying, कुछ भी, जो भी amount which you guys are capable of, we'll be more than happy. हमको 1 रुपये भी आता दिखेगा ना, हमको मज़ा आएगा भाई देख के. हाँ, और यार एनालिसिस करने में वो एक थोड़ा एक्स्ट्रा पैशन आ जाता है मॉनेटरी वो देख के हल्का सा. तभी तो सुबह के 4 बजे उठे हैं. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सनी देओल को देख के मज़ा आया भाई, सही में मज़ा आया. क्योंकि मुझे पर्सनली गदर 2 अच्छी नहीं लगी थी इतनी. आई हैव नॉट सीन गदर 2 येट. मैंने देखी है. फॉर मी गदर 1 वॉज सुपीरियर कंपेयर टू गदर 2. एंड बिकॉज गदर 1 हैड अ मच स्ट्रॉन्गर इमोशनल quotient. And also Amrish Puri, bro, nobody can top that guy. Rest in peace. He truly was a legend. And Bollywood, seriously, they don't have a replacement for him till now. Yeah, like when we end up analyzing Nayak at some point, we'll talk Oh, yes. a lot more in detail about like how he was able to pull off one of the most iconic villains in Indian cinematic history. Exactly. So इसलिए like for me गदर 1 was any day superior than गदर 2. and मुझे गदर 2 अच्छी नहीं लगी थी. but comparing that with JAAT right now, I genuinely feel कि भाई JAAT is a amazing screenplay, at least for me in the first half, and very entertaining. like Sunny Deol को his character and his essence, जो 90s and 80s, early 80s and late 80s and early 90s में the kind of star he was, the mass angry, you know, that kind of that aura, that character which he used to be known for, उसको पूरी तरह से प्रिजर्व करके दे हैव ब्रॉट हिम इनटू दिस साउथ इंडियन मसाला तेलुगु मसाला वर्ल्ड. एंड ही लिटरली फिट्स. ऐसा नहीं है कि जारिंग नहीं लग रहा था, ही फिट्स. तो कूडोस टू गोपी चंद मालिनी द डायरेक्टर. भाई स्ट्रॉन्ग क्राफ्ट है, अमेजिंग क्राफ्ट. he has he understands the genre, he understands Sunny Deol's star power, and he understands Sunny Deol's USP जो है, एंड उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, बहुत अच्छी तरह. I actually wanted to speak about this one thing, and it's a common misconception that people have. People think that making a film like this or writing a film like this is very easy.
Okay. And it is not meant for clever people. It is not meant for हाँ educated people. It is not. It is meant. It is like a छपरी फिल्म, जो बोलते हैं ना छपरी फिल्म. नहीं नहीं, वो तो एक एंगल है ही, बट द वन थिंग आई वांटेड टू फोकस ऑन इज दैट tomorrow if someone who is a bit more artistic of a filmmaker जो communities में consider किया जाता है, let's say अनुराग कश्यप है, okay, and if he would try his hand at making something like this, it would be very difficult for him to do it. ठीक है. वो बोलते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, ये ऐसी फिल्मों के लिए ही कहा जाता है कि यार ये फिल्म एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये फिल्म ऐसे लोग ही बना सकते हैं. ट्रू, वेरी ट्रू. एंड वो साफ दिखाई देता है बिकॉज तो इमेजिन करके तो लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ द राइटर. लाइक दिस एंटायर मूवी इट हैपन्स इन रियल टाइम. एंड सेम आई मीन ठीक है, एग्जैक्ट रियल टाइम नहीं, बट इफ यू कुछ हाँ थिंक अबाउट इट, दिस एंटायर स्टोरी इज रफली कितना 10-15 घंटे का है. यस. वो बोलता है ना, रणदीप हुडा का कैरेक्टर रानातुंगा जो है एंड में बोलता भी है कि भाई 15 साल से जो मैंने साम्राज्य खड़ा किया था उसको तूने 10 घंटे में तहस नहस कर दिया. सो दैट लिटरली शोज कि भाई लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ द राइटर एंड द डायरेक्टर टू क्राफ्ट अ स्क्रीन प्ले इन सच अ वे दैट you are for nearly 2.5 hours you are showing just almost half a day in a movie, and the first half is literally an episode. छोटा सा एपिसोड है, उसमें क्या एक फर्स्ट हाफ को समराइज करना है कि एक बंदा बस वही है कि इडली खा रहा था, उसको आके 4 गुंडों ने आके गलती से क्या जानबूझ के, दे डोंट नॉट केयर, उन्होंने आके उसका हाथ का प्लेट, जो हाथ में वो इडली खा रहा था सनी देओल का कैरेक्टर, वो उन्होंने आके धक्का दे दिया, उसकी इडली की प्लेट गिर गई और सनी देओल के कैरेक्टर को बस जाके वो गुंडे से बोल रहा है कि भाई तू सॉरी बोल. I have a theory about that. वो मैं I'll get नहीं to वो it. है, इट्स लाइक कि उसका मोटिवेशन, हम हर पॉडकास्ट में बोलते हैं ना, कैरेक्टर का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक मोटिवेशन होना चाहिए. सनी देओल्स कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव इज उसको बस एक सॉरी चाहिए. और Initially, सामने yes. मतलब फॉर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ. Yeah, till he finds out that there are these Yeah, female yeah. police officers who are there. हाँ वो चल that happens later, but for the context of this character, it's like जो सनी देओल का कैरेक्टर है, we know nothing about that character. The makers just equated him to Lord Ram. That's all they did. He is a force of nature. Sunny Deol in the first half is just a force of nature. मतलब he's a mystery. हाँ, he's a We mystery. don't हमें लिटरली नाम तक नहीं पता भाई उस बंदे का. हमको नाम एंड में पता चलता है, मूवी के एंड में. जैसे वो शान प्राशर बोलता रहता है ना, अरे एनिमल में उसका तो नाम ही नहीं पता नहीं चलेगा, तो उसको बड़ा मजा आ रहा था ना. तो इस मूवी में दे लिटरली यूज्ड दैट ट्रोप दैट वी डोंट नो द नेम ऑफ द कैरेक्टर, बट वी आर स्टिल कनेक्टेड टू द कैरेक्टर बिकॉज वो जो उसका ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ अ वेरी सिंपल ऑब्जेक्टिव एंड इट इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग ऑब्जेक्टिव. उसको बस सॉरी चाहिए बदले में सनी देओल के कैरेक्टर को, और सामने कोई भी गुंडा उसको सॉरी नहीं बोलने को रेडी है. द मूवी वुड हैव लिटरली एंडेड देयर इटसेल्फ अगर उस गुंडे ने वहीं पे सॉरी बोल दी होती तो. No, that is where my theory comes in. ओके फेयर ना, बट I'll talk about it. ठीक है. मेरे लिए तो ऐसा था कि भाई उस पॉइंट पे अगर वो सॉरी बोल देता ना, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिस वुड हैव रिजॉल्व्ड. Basically, this entertaining screenplay structure which we got for the next जितना भी आधा पौना घंटा till the interval, वो खत्म हो जाती. And that is where I feel the writer uses our suspension of disbelief and pulls on that thread कि भाई हाँ सामने वाला सॉरी बोलेगा ही नहीं, तो अब now this JAAT will enter action करके वो he is now going to climb the hierarchy and reach the eventual objective रणतुंगा, the main big bad. तो शुरू होता है इस छोटे गुंडे से, फिर वो छोटा गुंडा वो एमएलए का नाम लेता है, फिर वो एमएलए रणतुंगा के भाई का नाम लेता है जो उसके ऊपर होता है, जो एमएलए के ऊपर होता है, फिर वो रणतुंगा का भाई को उसका नाम क्या है, सोमलू. सोमलू भी ऐसा ही है कि वो भी यू रिकॉग्नाइज हिम ना, सोमलू. छावा में था ना अपना छावा. ही वाज आल्सो इन मुक्काबाज. एंड आई मीन उसका भी मस्त गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी. But talking about this, I want to give the writer like a credit for something else, because we have come off like fresh off Sikandar. This
हाँ ठीक है I'll talk about it just No, it's like just remember, मैं interrupt कर रहा हूँ, but मेरे लिए ये था कि this is what it's like जो AR मुरुगदास सिकंदर के साथ नहीं कर पाया, गोपी चंद managed to do it with सनी देओल. हाँ बट मैं बोल रहा हूँ कि वन थिंग आई रिस्पेक्ट अबाउट दिस अबाउट गोपी चंद एंड सनी देओल हिमसेल्फ इज दैट they are not afraid of giving screen time to other characters. Exactly. वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी. देख फॉर एग्जाम्पल दैट नेता गाय राइट जो सेकेंड वो आता है उसका पूरा फैमिली का वो दिखाया नॉट इवन रेलेवेंट दैट मच. उसका नाम है राम सुब्बा रेड्डी. हाँ ओके So okay, just look at the impression this movie has left on me. मेरे को सबके नाम याद है. Exactly. मेरे को कभी किसी के नाम याद नहीं होते भाई मूवीज में. मेरे को मंत्री का नाम याद है, मेरे को सोमलू याद है, मेरे को रणतुंगा याद है, मेरे को उसकी बीवी का नाम नहीं याद है क्योंकि आई थिंक भारती नाम होता है. आई थिंक समथिंग लाइक दैट. आई थिंक आई डोंट नो. भारती नाम होता है उसकी वाइफ का. ओके. देन सत्यमूर्ति नाम होता है उसका सीबीआई ऑफिसर. अच्छा, जो CBI अपेरेंटली पूरा जिंदगी वो रास्ते में ही रहता है उसको. यू वर टॉकिंग अबाउट रामसुब्बा रेड्डी. गेट बैक टू योर पॉइंट. No, yeah, so that is what I was saying, that the movie, the screenplay is not afraid to take time out to introduce or spend time with other characters. Okay, and and these are not like throwaway scenes that we spend with other characters. Like for example, first time जो राम सुब्बा रेड्डी है, I was like okay fine. उसके बाद the time they spend with flashback, that is also fine. But I specifically made a note when they spent an entire scene of that girl who is writing the letter, and वो पूरा scene they take पूरा breathing moment है वो कि you just impactful है पूरा right, and they make you watch that. It's not a very comfortable watch to a child is watching her brothers just cut off their thumbs and she's crying and the letter is wet with her tears. All of that, it's not a comfortable watch, but again वो अच्छा है. And यार सनी देओल as your protagonist उसका भी contribution है यहाँ पे राइट. सलमान खान बोलेगा मुझे हर सीन में रहना है. This story is a tailor-made story for Salman Khan. Yes. Because this is the kind of movies he has been doing for the past 10 to 15 years 2010 के बाद. So उसके लिए अगर ये story होती, this would have been perfect for him. And अगर ये सलमान खान ये movie करता ना तो it would have been a massive success as well. But I doubt it कि भाई वो इतनी मेहनत करता जितनी सनी देओल ने करी है. हाँ, at 67 years of age. एग्जैक्टली वो भाई अभी 59 में नहीं कर रहा, तू 67 की बात कर रहा है. एग्जैक्टली. सिकंदर में देख लिया था हमने कितनी मेहनत करी थी. सोते सोते तो डायलॉग बोले हैं सारे. Do you remember that director which we went to assist, and he was raving about Sunny Deol because he had worked with Sunny Deol, and basically he had worked with Bobby Deol, and Sunny Deol was the producer. एंड वो बता रहे थे ना कि किस तरीके से he felt that Sunny Deol is a much better performer than Bobby Deol, and Sunny Deol could basically, एक चीज़ मेरे को आज तक याद है जो उस डिस्कशन में हुआ था. he told us that if you give a scene to Sunny Deol and if you basically shoot if you plan a shot and if you have a track shot and if it is a slow track, Sunny Deol will hold the emotion and hold the expression for that long. Okay. He was that kind of an actor, and he could do that without the director instructing him. The one thing I remember is it sort of made me rethink like my image of Sunny Deol. Yeah, so that director he said that when he was set out, like when he wanted to make a horror film, Sunny Deol recommended a film to him. It was like, yaar ye movie. Acha, I remember you've talked about this. Yes. Yeah, and that film was, and this is the least expected film. I would like Sunny Deol आके मुझे बोलेगा ना ये film देखने के लिए, I would be like, आपने देखी है ये film? Okay, that would be my, because वो image create हो गया है ना. But that film was Pan's Labyrinth, Spanish film है. Yeah, I know Pan's Labyrinth. हाँ, मैं चौंक गया था जब ये पूरा रिकलेक्शन किया था उसने. This comes back to that
initial discussion which we were having, that those who think ki this kind of a genre movie is meant for uneducated people, or this doesn't involve any sort of filmmaking craftsmanship, or इसमें कोई भी cinematic knowledge नहीं लगती, you are living in a massive misconception. It takes like tremendous effort in to create success with this genre. I was left with this thought कि we've talked about strong female characters and वो literally होना ज़रूरी नहीं है, right? भारती here in this film, ठीक है, ये seasoned writer है, old school writer है, but उसने कितनी strong female character लिखी है. Strong and evil, so evil. Evil. She's वो much तो more है ही. evil than I mean I think she's on par, her evil is on par with Ranatunga, Yes. and they make the perfect power couple. So कि भाई तुम दोनों ही हिले हुए हो. again, I went to watch this film with my wife, and when Ranatunga died, she was unaffected, but when she unalived herself, Bharati unalived herself, my wife was disappointed. My wife was like, इसको तो पकड़ के पेलना चाहिए था पहले. Yes, Okay. of course. What अरे वो करवा भाई, वो क्या करती है. I mean it's like मैं अगर सोचूंगा ना, पूरी मूवी में रणतुंगा ने कुछ नहीं किया. आई थिंक सिर्फ गोली से 2-3 लोगों को उड़ाया उसने. और बहुत सर काटे हैं. हाँ, सर काटे हैं, बट कंपेयर टू व्हाट भारती डज हाँ, मूवी में, मैं मूवी में बोल रहा हूँ. ऑफ कोर्स यू माइट हैव इंडल्ज्ड इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ इविल जो ऑफ स्क्रीन हमें दिखाया नहीं था, बट भारती का हमें दिखता है भाई उसने क्या किया था. उसने लिटरली पुलिस वाली उन लड़कियों को अंदर बुला के दरवाज़ा लॉक करा के उनको स्ट्रिप करके शी कंडोन्ड इन देयर आर वर्ड. yeah, exactly. So that is much. I mean, it's like she herself was a woman and she willingly, इसको like पता, हाँ ठीक है करो जो करना है करो. Ranatunga and Bharati as a couple, such a power couple, okay, दोनों, and there is so much respect for each other that they have. It is crazy that ये couple की इतनी खतरनाक personality तुमने create की है कि every scene with them is very interesting. Yes. Because first half में you need somebody, right? Sunny Deol has no personality in the first half other than वो बहुत गुस्से में over this idli thing. Sunny Deol is basically playing Sunny Deol in the first half, and it's like we as an audience, we expect कि हाँ भाई ये Sunny Deol है, so we have an off-screen recall value of who Sunny Deol is and what he is capable of. So that is why we basically the star value. So वो समझ में आता है. But that mystery also, like I was also genuinely interested in who this character is. Like it is a very interesting hook which the writer manages to create कि भाई एक बंदा सॉरी बोलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. Yes. And the perfect parallel is तेरा वो भी रणतुंगा भी same character है. But he's in the opposite spectrum. So which is why the clash makes sense. Exactly. And which is why I was so excited for the second half कि हाँ भाई अच्छी तरीके से इसको मिल्क करेंगे and इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे. I was expecting the second half to be shown from रणतुंगा's perspective, जिस तरीके से इसमें फर्स्ट हाफ में जाट में हमें दिखाया था ना कि पूरा सनी देओल हायरार्की क्लाइंब करके रणतुंगा तक पहुंचा. Now I wanted the second half to be रणतुंगा wanting to get a sorry from this guy. और वो बोलता भी है, लाइक डायलॉग के थ्रू वो बोलता भी है कि जब वो एक पुलिस जो उनके ग्रुप जिस पुलिस वाले ग्रुप को वो रेस्क्यू कर देता है सनी देओल का कैरेक्टर, उसमें एक लड़की जब मर जाती है तब वो उसको कॉल करता है ना सनी देओल को, और वो बोलता है कि अभी तू देख हर जगह एक एक करके मैं तेरी इन सारी बहनों को मैं मारूंगा, मारने के बाद फिर तू झुकेगा और फिर मैं तेरे से बोलूँगा तू सॉरी बोल. आई वॉज लाइक येस दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट. बट उसके बाद वही है ना, वो स्ट्रक्चर वेवर हो जाता है क्योंकि they have to establish a backstory, they have to now reveal who Sunny Deol is, and then they have to reveal what happened to this village which Ranatunga has taken over. तो वो जो पूरा वो बैक स्टोरी बताने में फ्लैशबैक वाले स्ट्रक्चर में वो चले गए थे ना, दैट इज़ वेयर आई लॉस्ट, मतलब आई डिसकनेक्टेड विद द मूवी. बिकॉज मेरे लिए ऐसा था कि यार तुमने फर्स्ट हाफ में तुमने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पकड़ के रखा था जो तुम
लेके जा रहे थे, एंड सेकेंड हाफ में वो स्ट्रक्चर स्टिल इज प्रेजेंट, बट द प्रॉब्लम इज ये जो फ्लैशबैक सीक्वेंसेस बीच बीच में आ रही थी ना, दिस वाज अ स्पीड ब्रेकर फॉर मी, एंड आई वाज गेटिंग बोर्ड इन दैट, बिकॉज फॉर मी दैट वाज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल. आई हैव सीन दैट इन 1000 अदर मूवीज. Sure, I'm just saying that what the direction they took was with the self awareness कि हम ये फिल्म एक मास फिल्म बना रहे हैं एंड ये सब चीज़ें ज़रूरी है इसमें रखनी. फॉर मी मतलब आई यार, जस्ट फेल्ट नहीं वो एक तरीके से मैं समझ सकता हूँ, एंड मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि भाई तेलुगु मूवी है तो तुम एक्सपेक्ट करके आओ ये सब होगा. हमने कितनी बारी बोला है, तो मैं एक्सपेक्ट करके आया था ये सब होगा, बट द थिंग इज यू गेव मी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई मीन आई विल गिव एन एग्जांपल कि मैं मैकडोनल्ड्स में गया हूँ एक्सपेक्ट करके कि मेरे को बर्गर खाना है, और तुम लोगों ने मुझे सबसे पहले क्या किया, बोला कि ये एक नया बर्गर है जो अभी हमने मेन्यू में इंट्रोड्यूस किया है, ये तुमने खिलाया, एंड इट इज़ लिटरली द बेस्ट बर्गर विच आई हैव एवर ईटन फ्रॉम मैकडोनल्ड्स. बट फिर उसके बाद क्या बोला कि अरे ये तुमको आधा ही मिलेगा, फिर अब तुमको रेगुलर वो मैकालू टिक्की खाओ. अबे नहीं, मेरे को वो बर्गर दे, मेरे को वो चाहिए. तो तभी मेरे को तभी दैट इज व्हाई आई एम एंग्री एट दिस मूवी कि सेकंड हाफ में यू ड्रॉप्ड द बॉल फॉर मी, बिकॉज यार मैं वही बोल रहा हूँ ना, ज़रूरत नहीं थी. वी डिड नॉट नीड दैट फॉर, आई विड से कि हमें वो उस बैक स्टोरी की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो क्यों कब्जा करना चाहता है, उस रणतुंगा क्यों कब्जा करना चाहता है उन सबके लैंड को, कि एक कोई मंत्री है, मंत्री को कोई बाहर की कंपनी से उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि यहाँ पे क्या वो थोरियम वोरियम मिलता है इस पूरे लैंड में, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन सोगों को खाली करवाना है. क्यों जा रहे हो भाई इन सब में, तुम क्या मिलने वाला है? व्हाट दैट स्टोरी लाइन लिटरली डजंट गो एनीवेयर. You didn't even need the character of that CBI officer. Take him out and the plot still is the same. नहीं बट चल, एक तरीके से वो मैं समझ सकता हूँ क्यों CBI कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि द मूवी स्टार्ट्स विथ रम्या कृष्णन्स कैरेक्टर, द प्रेसिडेंट रिसीविंग अ लेटर, एंड बेसिकली शी इंस्ट्रक्ट्स दिस गाय टू गो एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन. तो वहाँ उस सेंस, एंड वो जैसे तूने भी कॉल में बताया था ना कि दैट प्रेसिडेंट का जो मूवी की जो हुक है, सेंट्रल हुक है कि शी रिसीव्स अ पार्सल, द प्रेसिडेंट रिसीव्स अ पार्सल, एंड जैसे ही वो ओपन करती है उसमें उसको एक लेटर मिलता है और साथ में 5 अंगूठे मिलते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअल. तो उससे तेरे को इमीडिएटली एज अ व्यूअर यू आर इंट्रीग्ड बाय ओके व्हाट इज गोइंग ऑन. The structure of that, I was talking about the scene hook, right? Which is something people miss out on, because this is a scene जहाँ पे somebody is reading a letter written by somebody else, right? For a viewer, it's not very interesting, but you introduce a scene hook of those thumbs, and suddenly there is a lot more context to that letter. Now you want to find out कि letter किसने भेजा है और इसका context क्या है. तो तभी ना, तो लाइक एज अ प्रेसिडेंट शी ऑब्वियसली शी विल इंस्ट्रक्ट हर टॉप मोस्ट ऑफिसर जो कि एक CBI का है, तो वो उसको बोलेगी. तो इसलिए वो CBI का कैरेक्टर तो मेक सेंस व्हाई ही वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड वो भी एक तरीके से फनी है कि जिस तरीके से वो पूरा इन्वेस्टिगेट करने गया, एंड बाय द टाइम ही रीचेस इट उसका पूरा केस ही सॉल्व हो गया है. सनी देओल के कैरेक्टर ने सॉल्व कर दिया है. Did you feel it was sort of a misdirect? When you see the thumbs, you feel like Ranatunga ने thumbs भेजे प्रेसिडेंट को. Just initially. Okay. नहीं, मेरे को कभी वो फील नहीं हुआ था. और बेसिकली यार मैं एक और भी बताता हूँ ना, मैंने इस गोपीचंद की काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, सो आई एम ऑल्सो फेमिलियर विथ हिज स्टाइल. Okay, so now coming to, since I brought up Gopichand, I'll just briefly talk about another thing which I felt while watching this movie. 2021 में he had made Krack with Ravi Teja. Krack में Ravi Teja is playing a police officer, and वो उसका क्या है, जैसे कि इसमें हुक है ना कि भाई उसको सॉरी बुलवाना है तो वो किसी भी हद तक जाएगा. तो रवि तेजा कैरेक्टर्स इन क्रैक इज बेसिकली दैट, कोई भी अगर ये बोल देगा ना, ए तू जानता है मेरे बैकग्राउंड में कौन है, उसकी सनक जाती है और वो पूरी तरह से क्रैक होके वो मारने लग जाता है. सो दैट इज़ हाउ ही कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बिग बैड. नाउ व्हेन आई वाज वाचिंग जाट, I felt that this particular script was meant for Ravi Teja, and I feel that this was the sequel to Krack. मूवी में भी वो जो रामसुब्बा रेड्डी जो होता है ना, उसके बाद सोमुलू से जब सनी देओल का कैरेक्टर मिलने जाता है, सोमुलू उसको क्रैक बोलता है.
Oh ए तू yeah, क्रैक yeah, Crack Man. देखा, क्रैकमैन बोलता है। और जो रामा सुब्बा रेड्डी है वो लिटरली सोमोनू को जब सनी देओल पूछता है ना कि जब सनी देओल उसको बार बार ही राम सुब्बा रेड्डी को मार मार के बोल रहा होता है सॉरी बोल, तो रामा सुब्बा रेड्डी बोलता है कि ये तू जानता है मेरे बैकग्राउंड में कौन है। Okay. सो व्हेन आई हर्ड दीज टू मेरे को लग ही रहा था कि यार ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस वॉज मेंट टू बी द सीक्वल फॉर क्रैक। एंड अगर if this was the sequel for Crack na, it would have made perfect sense because for the viewer they already know who Ravi Teja's character is. यहाँ पे it's like that is one flip side and that is one small negative for me that even though मैंने पहले बोला कि सनी देओल का कैरेक्टर थोड़ा मिस्ट्री में रहता है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि सनी देओल का कैरेक्टर थोड़ा हाफ बेक्ड है, फ्लैश आउट नहीं किया उसको, ज़्यादा डेप्थ नहीं है उसका। जैसे तूने भी बोला था कि फर्स्ट हाफ में उसका डेप्थ नहीं है, एंड वो डेप्थ हमको फिल करना पड़ा बिकॉज वी नो हु सनी देओल इज, पुरानी हिस्ट्री की वजह से। दैट वाज द स्टार पावर ऑफ सनी देओल विच इज़ वाई इट ऑल्सो वर्क्स टू सम एक्सटेंट, बट कंपेरेटिवली रणतुंगा इज अ मच मोर फ्लैश्ड आउट कैरेक्टर। Yes. I just think they just put some meta references यहाँ पे. That was a consolation for him, for Gopi Chand. हाँ मतलब वही एक मेटा रेफरेंस वही ना, वो सनी देओल वाला 2.5 किलो का हाथ वाला उन लोगों ने डाल दिया था। दैट इज़ व्हाट दे यूज एंड ऑल्सो दे कैरेक्टराइज सनी देओल स्मॉल थोड़ा सा, जैसे कि वो सोमोलू को जब मारने जाता है ना, वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाके मार रहा होता है उसको, एंड वहाँ पे एक पोर्शन होता है जब वो गुंडे को मार रहा होता है और उस गुंडे के हाथ में ना इंडिया का फ्लैग होता है, छोटा सा जो स्टैंड होता है ना इंडिया का फ्लैग, एंड उसको सनी देओल का कैरेक्टर जो है बहुत केयरफुली उठा के साइड में रखता है। सो that kind of characterizes him, that sets up the reveal later on कि हाँ भाई ये मिलिट्री वाला है। बट फॉर मी इन दैट सीन while I was watching it, मेरे को लग रहा था कि हाँ ये सनी देओल है, क्योंकि सनी देओल हैज ऑलवेज प्लेड दीज काइंड ऑफ देशभक्त वाले रोल्स। सो मेरे लिए तो वो था कि ही वॉज प्लेइंग द टिपिकल वो दैट आइडियलिस्टिक मैन। एंड ऑफ कोर्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस ही सनी देओल को किया था विद द सॉन्ग ऑफ राम। Okay, I'll get into my theory now that we are talking about it. I feel that train which he got out of, which Sunny Deol got out of, was stopped. Okay. Okay. Not by any human. Okay, तू वो वैसा वाला बोल रहा है। Okay. हाँ, even I felt that. Okay. And when I was thinking, so I was going over my notes and I had made a note. Thank God I made a note about this. Remember how Lord Ram, he goes to Lanka by crossing a river on a bed of rocks. Yes. Okay. यहाँ पे when he gets out of the train, they make sure एक proper scene है where they show that he steps on a bed of rocks, entering Lanka. Interesting. ठीक है, सो एवरीथिंग दैट हैपन्स सब्सिक्वेंटली इज ऑल रिटन, इट्स डेस्टिन्ड टू हैपन फॉर मी। हाँ, इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो सी ओके, बेस्ड ऑन योर थ्योरी, जो वो भारती का कैरेक्टर होता है, जब वो इट्स लाइक इमेजिन कर, सबसे पहले वही वो पूरा सीन हो गया और वो सारी पुलिस वाली जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं, दे हैव अराइव टू अरेस्ट रणतुंगा, एंड उसको पता चलता है भारती को कि ये आए हैं, तो भारती वही वो करवाती है, वो स्ट्रिप करती है उन पुलिस ऑफिसर्स को, और फिर वो जहाँ पे उनको इम्प्रिजन करके रखा होता है वहाँ पे वो जाती है और वो बोलती है कि ये जो लंका है यहाँ पे कोई भगवान कदम नहीं रख सकता और कभी नहीं रख सकता। एंड देन दे कट टू वो इधर वो सनी देओल एंटरिंग द स्टेशन सराउंडेड बाय द रामनवमी का सेलिब्रेशंस। एंड अगेन वंस मोर आई हैव टू लाइक kudos to the writer, of course I think गोपी चंद, उस पॉइंट में दे हैड ओनली शोन द फीमेल पुलिस ऑफिसर्स गेटिंग स्ट्रिप्ड। वो उनके साथ क्या होता है, द अब्यूज, दे ऑफ कोर्स वो उन लोगों ने, आई मीन यू आर वंडरिंग, ऑफ कोर्स वो तो होगा ही बिकॉज दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, बट अगर वो पहले ही दिखा देते ना और उसके बाद इमीडिएटली इफ दे हैड कट टू दैट सॉन्ग रामनवमी वाला, इट वुड हैव बीन अ टोनल विप्लैश, massive tonal whiplash. So kudos to the director for easily segueing from that portion to Ram Navami ka song, and we only learn about what happened to the women later on when Sunny Deol rescues them,
and they actually tell him कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ. हाँ. So I mean again this goes to again जैसे हम बोलते हैं ना smart writing, like an amateur director or amateur writer, what they would have done, पहले से ही उस चीज को रिवील कर देते हैं, and then they would have gone for the रामनवमी song. It would have been so cringe, मतलब it would have been literally that ब्रह्मास्त्र वाला मोमेंट कि नागार्जुना की लाइफ खतरे में और ये जा रहे हैं कि सरिया इश्क है मेरा. This storytelling tool of segwaying like this is so effective for me. I remember as part of my as part of my thesis, I had to read Mahabharat again. Okay, so I spent a week just going through the Mahabharat. मैं रोज रात को जग के एक्स्ट्रा पढ़ता था, and I was trying to understand everything. So there is a scene जो उसमें डिस्क्राइब किया है, वहाँ पे द्रोणाचार्य is teaching everybody, ठीक है. एंड दैट सीन कम्स जहाँ पे अर्जुन वो मुझे सिर्फ बर्ड की आंख दिख रही है, वो बोलता है ना, राइट. हाँ, एंड देन ही इज इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ दैट व्हाट अर्जुन इज एबल टू डू, एंड वो बोलता है अर्जुन को, यू आर द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, ठीक है. एंड आई टर्न द पेज, नेक्स्ट चैप्टर टाइटल वॉज एकलव्य. नाइस. नॉट हैपनिंग ब्रो, नहीं वो ग्रेटेस्ट आर्चर नहीं है. सच अ ग्रेट सेगवे यार. Yeah, and technically if you see, I think okay, of course greatest तो नहीं है, even Karn also loses in that Swayamvar. So greatest archer supposedly is Arjun, but नहीं, एकलव्य है. So that is a segwaying tool, and of course यार तो ये मैं बोलता हूँ ना यार, अपनी स्टोरी टेलिंग इंडिया की स्ट्रॉन्ग है, उस टाइम से ही स्ट्रॉन्ग है. We lost all of that because the kind of people like those who know the craft, I mean imagine करके देख, अगर गोपीचंद जैसे डायरेक्टर के साथ सनी देओल 15 साल पहले मिल चुका होता, सोच क्या उसका करियर ग्राफ कैसा होता. एंड यहाँ पे यार कैरेक्टर वो कितना स्ट्रॉन्ग है यार, इसका क्राफ्ट कितना स्ट्रॉन्ग है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही इज इन द ट्रेन, व्हेन सनी इज इन द ट्रेन, ही इज पर्पसफुली मेड टू सिट विद विमेन. उसके अराउंड बंदियां हैं, ओके, आगे पीछे बंदे हैं, बट उसके अराउंड बंदियां हैं, वो जिस वहाँ पे बैठा है. and he literally that one short scene in that song where they show कि वो जो फीमेल होती है वो उससे उसका बच्चा लेके उसको कंफर्ट कर रहा है कि ताकि वो पानी पी ले, एंड वो दिख जाता है कि he is so trustworthy that the female trusts his literal baby with a stranger. Usually कौन सी माँ अपने बेबी को किसी स्ट्रेंजर के हाथ से थमाएगी? कोई नहीं करेगी, वो भी ट्रेन में तो खासकर कभी नहीं करेगी. Exactly. So every scene को पर्पस दिया है उन लोगों ने, कुछ there is nothing wasteful here. Yes, but I also since we are talking about this portion, I also have a complaint about this, that ये जो पूरा song है ना, this song I know, like जिस तरीके से तूने अभी वो जो टूल बताया था segwaying वाला कि द्रोणाचार्य talks about you are the greatest archer and then cut to so the next chapter's title is एकलव्य. सो सेम टाइप इसका भी है कि वो भारती के कैरेक्टर बोलती है ऐसे कि यहाँ पे कोई भगवान नहीं आ सकते, एंड देन कट टू वी सी राम लाइक सनी देओल. सो दे हैव ट्राइड टू इक्वेट सनी देओल्स कैरेक्टर विथ राम द सेम वे दे डिड इट इन सिंघम 3 एज वेल, इन वेरी पुअर इफेक्ट. सो यहाँ पे भी वही टूल उन लोगों ने यूज़ किया, बट यहाँ पे इट्स मच मोर इफेक्टिव. बट एट द सेम टाइम आई फील कि दे शुड हैव डन समथिंग एल्स विथ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. जैसे जिस तरीके से उन लोगों ने वो मोमेंट बताया था ना कि वो ट्रेन में बैठा है, वो औरत जो है अपना बच्चा इसको दे रही है. आई फेल्ट ऐसे और मोमेंट्स दिखाने चाहिए थे इस पर्टिकुलर गाने में टू कैरेक्टराइज हिम मच मोर. यार कंसिस्टेंसी इश्यूज मुझे भी है, ओके. I personally feel this might feel like nitpicking, but I was a little uncomfortable. Why would you have a character and equate Lord Ram with him and then show that he's smoking? मतलब वही है ना, of course. That is one thing. The other problem I had is, if you are showing that your villain is a Ravan Bhakt, okay? I don't think Ravan would approve molestation of women. Molestation तो दूर की बात है, वो तो literally abuse ही हो रहा था. Exactly. So
आई डोंट नो इफ इट्स शोन टू बी कि यार ये भक्त है बट ये पूरी तरह से मानता भी फॉलो नहीं करता है फुटस्टेप्स में, बट रावण हिमसेल्फ ऐसा नहीं करता वो. Ravan was a Brahmin. Ravan was a Pandit. एग्जैक्टली. And he was like, his only mistake was that he abducted Sita. या. That's it. That was his only. He was a Shiv Bhakt. Ravan was a Shiv Bhakt, and Lord Shiv gave him boon. यस. And वो boon पाने के लिए he did tapasya, proper tapasya. And Lanka was also a thriving kingdom. यहाँ पे जो इसकी जो रणतुंगा की जो लंका थी, दैट वाज नॉट अ थ्राइविंग किंगडम, दैट वाज लिटरल वेस्टलैंड. The reason I appreciate Ranatunga as a character is that एक तो firstly I felt like the look is very much like Bhairava from Devara. हाँ सेम है ना. हाँ, बट लुक एट हाउ प्रोएक्टिव रानाटुंगा इज, एंड वो कैसा था, भैरवा कैसा था. हाँ वही ठीक है? तो वो तो राइटिंग की बात आ गई ना. मैंने नोट्स बनाए थे अबाउट हाउ दे हैव शोन रानाटुंगा कॉन्स्टेंटली. छोटी छोटी डिटेल है, कैरेक्टर वर्क बहुत अच्छा है. ठीक है. सो स्टार्टिंग में व्हेन दे फाइंड द गोल्ड, ओके, एंड रानाटुंगा इज द वन हु इज लाइक लेके चलते हैं उसको, ओके, एंड वो पूरा इम्प्रोवाइज करता है. ही इज शोन टू बी लीडिंग एज एन एग्जाम्पल. वो अपने भाइयों को नहीं बोलता तुम लोग करो मैं देख ले मैं आता हूँ, ऐसा कुछ तो भी नहीं. ओके, ही टाइज द होल कैस्केट टू हिमसेल्फ एंड ही रन्स विद इट. ठीक है. हाँ, वहाँ पे जाके भी ही इज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट डिगिंग. यस. ठीक है. सो ही लीड्स बाय एग्जाम्पल. सो ही इज ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इतने छोटे से में. एंड again they've taken so much time to set up the villain. हाँ. पूरा सीक्वेंस दिया है. एंड अगेन kudos to रणदीप हुडा. रणदीप हुडा बहुत अच्छे से समझता है रानाटुंगा के कैरेक्टर को. रणदीप हुडा इज द सोल ऑफ दिस मूवी. यस. सो मेरे लिए वो काफ़ी लाइक पावरफुल था. एंड ऑल्सो आयरॉनिकली रणदीप हुडा इज एन एक्चुअल जाट इन रियल लाइफ. Yes. So JAAT वाली मूवी में he was not able to play the JAAT. So but Sunny Deol is also a JAAT, I guess. Fun fact about Randeep Hooda. So the first film I analyzed film school में was Monsoon Wedding, which is the debut film of Randeep Hooda. ठीक है. Okay. And Randeep Hooda का स्ट्रगलिंग स्टोरी यही है कि he was doing MBA ऑस्ट्रेलिया में, एंड Okay. वहाँ से ही जस्ट ड्रॉप्ड एवरीथिंग, केम हियर एंड एक्टिंग में घुस गया वो. Okay. इन दैट फिल्म मॉनसून वेडिंग ही प्लेज द सेम कैरेक्टर. ऑस्ट्रेलिया से आता है वो MBA करके, एंड वो Okay. हाँ. सो वो बहुत इंटरेस्टिंग. और रणदीप हुडा उसमें भी बहुत अच्छा था वो फिल्म में भी. यार रणदीप हुडा इज एन अमेजिंग एक्टर. रणदीप हुडा का आई मीन ही इज केपेबल. ही कैन बी अ लीडिंग मैन as well as a big bad. He has that range and people will believe him in either roles. Yes. Coming back to Ranatunga, as you said, Ranatunga is the kind of villain which Bhaira should have been from Devara. Yes. And a villain like that would have easily improved Devara massively. And सोचो उसमें उनको इस मूवी जाट में they did not even have a चुट्टामले. Of course वो उर्वशी रौतेला को रख के उन लोगों ने कर दिया था. But imagine कर, सनी देओल की हीरोइन ही नहीं थी. Yeah. That is also another, क्या बोलूँ मैं, like वही ना reinvention कि imagine कर an actor like सनी देओल जो conventional hero, he agreed to do this kind of a role without a heroine, without any sort of romantic or love interest or all. But जानबूझ के हमको वेटेन और ऐसी टाइप की मूवीज में हमको दिखती है कि भाई the main protagonist has a partner. Yeah. This is an interesting conversation I wanted to have with respect to Ranatunga's character as to how to create a villain with a personality, with depth, but you also feel anger towards him. ठीक है. Exactly. It's a very difficult thing to do. अच्छे नहीं कर पाए.
ठीक है, मार्वल कभी नहीं कर पाया प्रॉपरली एक्सेप्ट थैनोस मे बी, मार्वल बहुत स्ट्रगल किया है विलन्स के साथ. But I understand why you are trying to bring Marvel because this feels like a superhero movie. yes, this is a superhero movie. मैं बोला ना, वो पूरा लिखा हुआ है उसका, दिस इज जस्ट गॉड वर्किंग इन हिज वेज, कि इसको मैं ट्रेन जैसे रोक दूंगा, मैं- इसको जाने दो. मैं KGF 2 में बोल रहा था जैसे उसकी माँ वो है सुपर नेचुरल बीइंग, वही माइथोलॉजिकल बीइंग है, यहाँ पे तू वो एंगल ले आया, मस्त है. हाँ, बट Okay, since you were talking about KGF, Prashant Neel should really learn from this. Like, वो बंदा वो भी एक सिंपल स्टोरी रखता है, बट ही ओवर कॉम्प्लिकेट्स इट अ लॉट. या इतना डिटेल दे दिया, इतना रिच मटेरियल दे दिया, बट देन ही लूजेस ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इधर दिस गाय गोपीचंद मैनेज टू क्रिएट लाइक लिटरली एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट को रख के एक्सपैंड किया, इतना एंगेजिंग फर्स्ट हाफ बनाया, और फिर ऑफकोर्स सेकेंड हाफ, क्योंकि प्रशांत नील भी वही करता है ना, ही क्रिएट्स दिस. आई मीन इफ प्रशांत नील वॉज मेकिंग दिस पर्टिकुलर मूवी, ही वुड हैव एक्सपैंडेड रणतुंगा's कैरेक्टर 10-fold. एंड वो उसका पूरा जो विलेज का जो पूरा सेटअप है उसको एक सीक्रेट सिटी में कन्वर्ट कर दिया होता, और उसकी अपनी करेंसी होती, और उसकी अपनी हायरार्की होती, और उसकी अपनी लैंग्वेज, कुछ ना कुछ चल रहा होता उसमें. एंड देन उसमें तेरी वो जाट की एंट्री होती जो इसी का कहीं का कुछ का पार्ट हो सकता था. एंड देन वो ना वैसा राइटफुल एयर जाट होता वहाँ का. राइटफुल एड जाट होता, तो वैसे टाइप का कुछ ना कुछ क्रिएट होता प्रशांत नील की उसमें. आई मीन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग प्रशांत नील, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट्स लाइक you can learn a lot yeah from these kind of movies. I'm saying sometimes I feel such jealousy by seeing that okay, this is such a simple idea और कितना मस्त लिखा है. हाँ, I want to bring the discussion back to writing a menacing villain, which this film manages to do for me. Actually, it does that with two villains, with the wife and Ranatunga. दोनों के साथ they made me feel anger towards them. ठीक है, and it is not just showing the brutality. वो तो बहुत बार देखी है मैंने. That adds to it, sure, but I feel like there are a lot of things that are very little things. I'll start with Randeep Hooda. Okay, कि उसने कितना contribute किया है towards Ranatunga's character. ठीक है. टेक द सीन जहाँ पे वो लोग पकड़े जाते हैं जैसे ही दे एंटर इंडिया, राइट? Yes. वेयर दे आर मेड टू सिट वहाँ पे. ठीक है, एंड जस्ट ऑब्जर्व रणदीप हुडा एंड जस्ट हाउ कॉन्फिडेंट ही इज इन मैनेजिंग द सिचुएशन. वो खड़े खड़े सिर्फ एक नॉड के साथ अपने भाई को चुप करवा रहा है. ठीक है, इट शोज दैट ही नोज, ही इज़ वेरी कंफर्टेबल इन द सिचुएशन. उसको पता है क्या करना है, कब करना है. ठीक है, वो गोल्ड पहले नहीं निकालता है, उसको ही वेट्स फॉर इट. ठीक है, एंड अगेन नाउ जंप टू फाइनल सीक्वेंस व्हेन देयर इज द एंटायर क्राउड एंड ही इज फायरिंग बुलेट्स एट देम. Yes. एंड हाउ द पोजिशन ही इज इन, ही इज जस्ट रेस्टेड, लाइक ऐसे मार रहा है. सो ही इज अ सोशियोपैथ. Yeah. ठीक है, उसको दूसरों के मर्डर से इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट, एज लॉन्ग एज ही गेट्स द मनी. एंड वो भी उन लोगों ने थीम सेटअप करके रखी है, ही डज ऑल ऑफ दैट फॉर मनी, एंड एंड तक उसका पैसा का ग्रीड ही है. बहुत सिंपल मोटिवेशंस है इस फिल्म में, बाय द वे. ओके, हर चीज़ के लिए. Yeah, that is all is needed ना, that is all is needed. यही तभी तो दिस इज लाइक अ कॉन्फिडेंट राइटर. इट्स लाइक यू हैव दिस बॉक्स एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें तो कुछ क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ नया क्रिएट ही नहीं कर सकते. एंड दिस गाय मैनेज टू डू इट. यस, with existing ingredients he has managed to create something amazing. I mean इसका तू सोच, this movie only works because of its screenplay. Story wise देखेगा, there is nothing in this. screenplay and in terms of performances story. for me. Performances well is a secondary thing that the director to some extent has some control, but वो तो चल ऐसा है कि अगर if you cast the people correctly then तुम्हारा 90% of job तो हो ही जाता है. I'll add to the point that you are making. तूने बोला था ना कि स्क्रीन प्ले इसका स्ट्रॉन्ग है, एंड आई एडेड टू द थिंग बाय सेइंग परफॉर्मेंसेस भी स्ट्रॉन्ग है. बट वन मोर थिंग इज दैट इसमें इमेजरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, एंड द इमेजरी एंड इट्स कनेक्शन विद द थीम ऑफ द फिल्म. एंड
it it does exist there. So the one thing I noticed is, firstly, imagery is just you show a strong image and then through that image you are trying to make a larger point. ठीक है कि Yes. this image means this. ठीक है, Yes. and you keep repeating so that वो point तुम्हारे दिमाग में हैमर हो जाए, राइट? जितना कम डायलॉग हो उतना अच्छा है, बट ठीक है यार, ये मास मूवी है, इसमें डायलॉग तो जाता ही है ये सब में. बट आई ब्रिंग यू विद देर इज अ लॉट ऑफ मिट्टी इमेजरी हियर. Of course. ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन दे डिग फॉर द गोल्ड, स्टार्टिंग फॉर द गोल्ड, दे फाइंड द गोल्ड, बाद में दे बरी द गोल्ड. ओके वेट सिंस यू आर सी, जैसे मैं बोल रहा था ना, तो बोलते बोलते मेरे को एक नया चीज स्ट्राइक किया. लाइक मिट्टी में डिग कर रहा है और गोल्ड मिल रहा है. अल्टीमेटली वही तो है ना थीम, कि मिट्टी में डिग करके उसको थोरियम निकालना है. थोरियम इज द बिगर गोल्ड. सो जो रणतुंगा का कैरेक्टर है, ही इज बीन डूइंग द सेम थिंग सिंस द, उसका पूरा कैरेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो दिखा दिया पहले ही शॉट में, कि उसको बस मिट्टी को खोद के गोल्ड निकालना है. पहले वो लिटरल गोल्ड निकाल रहा था, बाद में पूरी मूवी में उसको फिगरेटिव गोल्ड निकालना है, कि जो थोरियम इस ग्राउंड में है दैट इज अ गोल्ड माइन. है ना? हाँ, वो तो है ही. ओके, that is him as a character. वो एक मैं विजुअल जैसे तेरी उस पॉइंट को मैं कन्वे कर रहा था, कि उन लोगों ने पहले शॉट में ही वो चीज़ दिखा दी, विजुअली कन्वे कर दी, कि दिस इज हिज मोटिवेशन, दिस इज गोइंग टू बी हिज मोटिवेशन थ्रू आउट द मूवी, कि इसको यहाँ से ये चीज़ निकालनी है. एनीवेज कैरी ऑन. No, but what you are saying is bang on, because it shows that he has no care for मिट्टी. वो खोदता जाएगा, ठीक है, to find what he wants, right? But the imagery in the film tells you what the मिट्टी really means. Yeah. So first you see कि वो मिट्टी से उसको वो सोना मिला. They come to India, shore पे they dig again to bury the gold. ठीक है, where does the farmer find the bodies? मिट्टी में. That there is that girl who has gone crazy. What is she eating? मिट्टी खा रही. मैं वही बोलने वाला था, शी इज ईटिंग मड. हाँ, and then Sunny Deol has a full dialogue. सनी देओल तो है ही. एंड द पुलिस ऑफिसर हु पासेस अवे, Yes. उसको भी मिट्टी में ही गाड़ते हैं. हाँ. So end यार तक वही मेंटेन रखा है उन लोगों ने. यार उन लोगों ने फिर ऐसी थीम उन लोगों ने मेंटेन करी. देन इट इज़ अ बैड थिंग, लाइक इट इज़ अ रॉन्ग थिंग विच दे डिड, दैट रणतुंगा को उन लोगों ने फिर लटका दिया. Yes, मेरे को वही प्रॉब्लम थी कि he did not get the proper ending for this should not have been. उसको मिट्टी में बेरी करना चाहिए था फिर. Yes. Because वो वहीं से निकल के आया है. The first thing you see, वो जंप करता है बाहर. Yes. ये कैसे मिस हो गया? This is a very गोपीचंद. ठीक है यार, I mean happens. तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, सेकंड हाफ प्रॉब्लम है. सेकंड हाफ में प्रॉब्लम है. Yeah. Even small things, right? Like जैसे ही वो जो गोल्ड का वो बॉक्स होता है ना, वो उसको ऊपर खींच रहे होते हैं. स्लोमो शॉट ऑफ डर्ट फॉलिंग ऑफ फ्रॉम दैट. ओके, वो इमेजरी इतनी स्ट्रांग है ना, वो तुमको हैमर करते रहता है गोपीचंद टिल इट इज बरीड इन योर हेड. Yes. Pun intended. Yes. Okay, yeah, of course. Mitti is the theme of this movie. Yes, very much so. रे मिट्टी से लिटरली उसको मिट्टी से ही फिर ख़त्म करना चाहिए था. आई गेस दे वर गोइंग फॉर दैट वन थिंग इमेजरी, की वो सोमलू को भी वैसे ही लटका देता है ना. सो वो इसीलिए पुलिस स्टेशन में ही तो लटका देता है ना उसको. सेकेंड हाफ में वो स्ट्रक्चर जो था, उन लोगों ने स्ट्रक्चर को अबैंडन करके दे चोज टू रिवील द बैक स्टोरी ऑफ like who this JAAT character is, and also what exactly is Randeep Hooda's character doing in this village. So वहाँ पे जो उन लोगों ने जो स्क्रीन टाइम यूज़ किया ना, आई फील दैट वाज ठीक है. आई गेस इट इज़ नेसेसरी टू सम एक्सटेंट दैट लोगों को, जो तेरे नॉर्मल जो ऑडियंसेस हैं, उनको जो कमर्शियल सिनेमा के ऑडियंसेस हैं, मे बी दे नीड इट. बट पर्सनली फॉर मी, मैं वही कह रहा था कि आई वॉज एन्जॉइंग द बर्गर यू वर सर्विंग मी मैन. तुम क्यों मेरे को वापस मैकालू टिक्की खिला रहे हो? एक और चीज़ थी, वो उसको पूछती है ना कि कहाँ जा रहे हो, एंड इज़ लाइक ट्रैकिंग. अब लाइक ये वनवास पे ही है.
इंटरेस्टिंग. द वन गुड थिंग आई अप्रिशिएट फ्रॉम दिस मूवी की सनी देओल को तो चलो लॉर्ड राम से इन लोगों ने इक्वेट किया. अच्छा हुआ इनको कोई लक्ष्मण हनुमान और सीता नहीं दिया. भाई साहब नहीं. तो क्योंकि वही है ना, सिंघम 3 वेंट दैट वे. तो दैट इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ सिंघम कि समवन. इसमें सेम शॉट है जो रावण में था, वेयर इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल हेड ऑफ रावण दे पुट द विलन. रावण में सेम शॉट है. वो तो तेरे को काफी तेलुगु सिनेमा में, तेलुगु मूवीज में मिल जाएगा. One note I made was that it is just crazy to hear a woman saying कि अरे तुमने हाथों में चूड़ियाँ पहनी है क्या. That Ranatunga's mother, I think it is Ranatunga's mother ना, मदर ही है. who says that. Yeah. वो भी अलग पागल है भाई. वो भी अलग पागल कैरेक्टर है. मतलब दिस इज द मदर विच प्रतीक बोराडे थिंक्स रॉकीज मदर वॉज. इसके लिए बोल सकता है कैसी माँ है ये. तमिल बोल रहे थे ना वो लोग. श्रीलंका दिखाया है ना. One thing I think is a great contrast is you have somebody who worships Ravan and he loves severing heads. Interesting. Yes. One more thing from the first half, like the background music बहुत इंटरेस्टिंग वे में उन लोगों ने प्ले किया है. लाइक उसकी भी ना क्या होती है, वो एक हायरार्की है. लाइक तेरे को वो जाट का वो मेन जो थीम सॉन्ग है वो तो तूने सुना था ना. तो जब पहली बारी वो इडली वाले ढाबे में जब वो उस बंदे को मारता है, तब उस तू फिर से सुनियो जब तेरे पास जब वो मूवी आएगी OTT में, तो उस जाट के थीम का बस पहला जो ट्यून है वो बजता है, एक वन पार्ट. सेकेंड लेयर में उसका नेक्स्ट सेगमेंट के साथ बजता है. एंड फाइनली जब क्या होता है कि जब वो उसका पूरा तोड़ कर आता है ना, एंड दैट इज ऑल्सो अनदर वो जक्स्टापोजिशन वाला सीन. कैसे होता है कि वी सी द फ्लैशबैक ऑफ रणतुंगा वेयर ही इज बेसिकली किलिंग दैट गाय जो वो सुअर बेच रहा होता है ना. उसने उसके भाई को मारा होता है. एंड दे आर ही इज कैरेक्टराइजिंग रणतुंगा की मैं कुछ भी सह लूंगा बट तूने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया. तो एट दिस पॉइंट वी ऑलरेडी नो कि भाई सनी देओल के कैरेक्टर ने इसके भाई को पकड़ पकड़ के मारा है. सो दैट क्लैश इज अबाउट टू कम. एंड फिर वो सीधा ऐसे एक डायलॉग भी है जो बोलता है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे आई थिंक वो पुलिस जो CBI ऑफिसर है ना उसको वो बोल रहा होता है कि वो जो मिनिस्टर होता है ना, जब वो CBI वाले से वो मिनिस्टर बोलता होता है तो वो मिनिस्टर जो है वो CBI वाले को ऑफिसर को बोल रहा होता है कि ऐसी दुनिया की कोई भी शक्ति या ताकत नहीं है जो उसके किले के अंदर कदम रख सकती है. कट टू पूरा लॉरी पूरा ऐसे तोड़ कर एंट्री हो रही है. एंड एज सुन एज सनी देओल इज emerging out, you hear the full song of the theme song of JAAT. The biggest elevation moment. So मैं कह रहा हूँ ना again, first half is so good यार. First half is so good. वो पूरा जो montage होता है ना, वो wanted वाला जैसे दिखाते हैं कि वो पूरा military का जो montage है, it works for me because भाई we have grown up seeing Sunny Deol play that kind of a character. पूरा border वाला vibe दे रहा था मुझे यार. wanted में when we find out that he's actually a cop, okay, it is a gut punch because अपने पूरी मूवी में सोच रहे थे कि क्रिमिनल है. yes, that is why the twist works ना. यहाँ पे if they वो जो ढाका में वो जेल में गया था ना, थोड़ा अगर वैसा भी कर सकते थे, आई डोंट नो, कि स्टार्टिंग में दे मेक अस थिंक कि मे बी वो एक क्रिमिनल है, उसकी जेल के कुछ टैटू वैटू बना रखे हैं, समथिंग दे माइट हैव शोन. एंड देन व्हेन वी फाइंड आउट कि एक्चुअली इंडियन आर्मी का बंदा है, that would also be a very great gut punch because आर्मी का है. I guessed already, मेरे को पता था आर्मी का ही बंदा होगा.
यार तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, सनी देओल का कैरेक्टर जो है फ्लैश्ड आउट नहीं है प्रॉपरली. एंड मेरे हिसाब से यही है कि दिस वाज द सीक्वल फॉर क्रैक, एंड इसका जो सेकेंड हाफ है कुछ और ही होता. एंड उनको वो स्क्रीन रियल एस्टेट वेस्ट करनी पड़ी थी बिकॉज दिस वाज अ न्यू कैरेक्टर. I don't know. This is a side quest for Sunny Deol's character in Border. हाँ एग्जैक्टली. अरे भाई ये तो लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरी मूवी वही है कि साइड क्वेस्ट ही तो थी. Yeah. पूरी साइड क्वेस्ट के चक्कर में इसने पूरी मेन विलन को खत्म कर दिया इसने. सोच This could easily be कि बॉर्डर फिल्म वो खत्म हो गई है, सनी देओल सरवाइव कर गया है और अब वो ट्रैकिंग पे जा रहा है कि हाँ चलो अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, एंड देन साइड क्वेस्ट आ जाता है यहाँ पे. और उस साइड क्वेस्ट के चक्कर में ही मैनेजेस टू गेट द बिग बैड. अरे खत्म कर दिया पूरा मस्त एकदम. सो दिस वाज एक्चुअली अ साइड क्वेस्ट. तभी तो स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्ग इन दिस एंड एवरीथिंग इज गुड. आई डोंट नो ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी. होपफुली चले यार, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ राइटिंग आई ऑल्सो वॉन्ट फ्रॉम, लाइक दिस इज द राइट काइंड ऑफ राइटिंग विच आई वॉन्ट फ्रॉम तेलुगु सिनेमा. अगेन वो सोमलू, द एक्टर हु प्लेज सोमलू, he doesn't have a character arc. कुछ भी नहीं है उसका. नहीं. Despite that he makes an impression. Yes. So वही जैसे तू कह रहा था ना कि सिंघम में जो शिवा का कैरेक्टर है, Yeah. उसको फ्री रेन मिल गया तो he is able to do whatever he wants to do. यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे भी उसको वही मिला कि फ्री रेन मिल गया कि भाई जो करना है कर इस कैरेक्टर के साथ. एंड ही भाई सही किया उसने, एकदम सही किया उसने. ये सब भी कितना इंटरेस्टिंग है. ये सीन में स्ट्रक्चर देख खाली. ओके, व्हाट इज वेरी स्मॉल सीन कॉन्फ्लिक्ट कि वो लोग गाड़ी में आए हैं एंड दरवाज़ा बंद है. सो इट यू फील लाइक ओ दिस वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है कि ये लोग आके वापस चले जाएंगे. बट देन देयर इज अ सेटअप एंड पे ऑफ. सेटअप है, सीन सेटअप पे ऑफ है यार स्ट्रक्चर में. सो वो सेटअप है, वो सोमलू वो गाता है, उसका पूरा स्टाइल है एक, right? And that turns into a payoff जहाँ पे that is the reason he stays, Sunny Deol stays. And another very interesting thing which I noticed is like सोमलू की राइटिंग वीक है क्योंकि उसका कैरेक्टर का कोई पॉइंट नहीं है, बट उसको एक मस्त यूनिक सा ट्रेट दिया है कि वो एक वो कुकू की तरह बार बारी ऐसे ओ करता रहता है. रणतुंगा क्या ऐसा कोई यूनिक ट्रेट है ही नहीं, बट उसकी राइटिंग स्ट्रांग है. या सो ये मेरे को देख के लग रहा है कि ये भाई डिलिबरेटली किया गया है यार. मैं जब फर्स्ट सीन ये वो सीन दिखा ना जहाँ पे दे आर कॉट एंड दे आर इन द पुलिस स्टेशन. ओके, वहाँ पे इफ़ यू सी सोमलू, उसका कैरेक्टर इज द लास्ट वन हु पुट्स द गोल्ड ब्रिक आगे. ठीक है, एंड ही इज हेजिटेंट टू. तो मुझे लगा मे बी दैट they will add to that afterwards, but वो नहीं हुआ. And okay, were you actually expecting कि रणतुंगा सॉरी बोलेगा? Yes. Yeah. वही. क्योंकि मेरे को लग ही रहा था उस मोमेंट पे कि आई थिंक सॉरी वो बोलेगा एंड दिस विल क्रिएट अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट. मैं उस टाइम पे वो सेंस कर रहा था. इवन दो आई वाज एबल टू प्रिडिक्ट इट, इट वाज स्टिल फन टू वॉच. Yes, I just wish that they had added this one thing, is that when he says sorry, his wife should not be surprised. That was the only weak point for me in that scene, जहाँ पे उसकी wife surprise होती है. I think his wife should expect कि ये sorry बोल देगा. Yes. Also, another fun observation. पुष्पा का इंटरवल भी यही है, सॉरी बोल. इमेजिन इस पोर्शन में अगर पुष्पा होता वो कतई सॉरी नहीं बोलता. इमेजिन वहाँ पे वो भंवर सिंह होता पुलिस स्टेशन में. हाँ, इंटरेस्टिंग. बाय द वे, ग्रेट प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ब्रांड प्लेसमेंट फॉर द कुरियर सर्विस. गुड जॉब. ओह अच्छा, हाँ. It actually feels organic as well, क्योंकि जो विलेजर्स हैं जेन्युइनली उनको एक वो टाइम लिमिट में होते हैं और वो पूछते हैं कि भैया कब तक ये पहुंच जाएगा. तो चीज़ें बोलते हैं अरे आजकल तो सेम डे ही पहुंच जाती है. सो अगेन स्मार्ट राइटिंग टू इंटीग्रेट एन एड, बट इट डजंट फील लाइक एन एड.
Yes, उसी ने बोला great job at like brand placement here. I know one thing which someone will complain कि भाई ऐसे ऐसे स्टोरी में फीमेल कैरेक्टर्स का और कोई काम नहीं है क्या, जब भी देखो आके इनको हर कोई स्ट्रिप करता रहता है. You need to understand that in remote areas and in slave kind of areas, this is how female characters are treated. Yes, sure. Even I was like, okay, this savior thing is a little played out, but वो उस तरह की स्टोरी टेलिंग वैसे ही हो रही थी. बट वही है ना कि ये तो वही ये स्टोरी का जॉनरा ही ऐसा है ना. But at no point did I feel that these are weak women. All these police No, they officers. are not. They are not. Yeah. वो लोग जीप में भी दे आर लिटरली फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब ऑफ इट. वो एक पॉइंट पे जीप से उतर जाता है वो लोग आते हैं, दे कम इन, दे स्टार्ट बीटिंग अप द गून्स, दे एक्चुअली ओवरपावर द गून्स. And the one female character who doesn't make it, do you recognize her? No. She was the reporter from Pushpa 2. Oh, The TV okay. anchor. The TV Okay, anchor. okay. There is another one. There is an influencer as well, Aisha Khan, Okay. and her name in the film is also Aisha. अरे इसमें जितने भी है ना, इन सबके नाम वही हैं जो उनके असली नाम. इस हाँ वही रखे होंगे इन लोगों ने. आई थिंक एक्सेप्ट फॉर विजय शांति. जो विजय शांति है, शी इज उसका असली नाम कुछ और है. Where have I seen And her? I've also seen her in many other movies. पता नहीं. So one thing I want to comment on her acting is that I don't think she is cut out for this genre. Okay. Because जिस टाइप के जो थोड़े वैसे टाइप के लाइंस है ना, जो वो जॉनरा आता है, वो मेलो ड्रामा वाला जो जॉनरा आता है, जो लाइंस हैं, दे नीड टू साउंड राइट. आई मीन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. कि कभी कभी कोई जैसे कोई like an actor like Sunny Deol, जब when he says that मैं जाट हूँ, सबको खाना खिलाने के बाद ही खुद खाता हूँ, और जब एक जाट फौजी बन जाता है उसके खून में अभिमान, ऐसे. आई मीन it's a very cinematic dialogue specifically for this genre. हाँ. Nobody talks like that in real life, Of course. at least in our cosmopolitan setting या in our modern setting. रणटुंगा का भी डायलॉग है ना कि इस गांव में वो लाशों में वो मेजर होता है डिस्टेंस. yes. बट व्हेन वो जो विजय शांति जो विजय शांति है क्या उसका नाम, जो भी उसका विजय नाम शांति होता है. हाँ. हाँ, तो वो कैरेक्टर को ना कुछ ऐसी लाइंस हैं. वो ऐसे सबसे पहले आके आई थिंक वो भारती को आके बोलती है कि तेरे को तो मैं नंगा करके ऐसे लेके जाना चाहिए, ऐसे विजय लक्ष्मी, सॉरी विजय शांति नहीं, विजय लक्ष्मी. तो जब वो ऐसे लाइंस वो बोल रही होती है ना, एंड वो फिर वो बोलती है कि आप जिसका कोई नाता नहीं है, आपने हमारी इज्जत मान और अभिमान बचाया करके. शी इज़ बेसिकली टॉकिंग सेइंग दीज लाइंस टू सनी देओल, एंड इट डजंट फील एज दो शी मीन्स इट. मतलब ऐसा लग रहा है कि इट डजंट सूट हर. दीज टाइप ऑफ लाइंस डोंट सूट हर, ऐसा लग रहा है. ओके. मतलब इट्स लाइक शी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस जॉनरा. वो मुझे फील हुआ था. That's all. I mean, I'm not complaining her performance. Of course, she's given a good performance, और जो expressions है बहुत अच्छे हैं उसके. It's getting conveyed. But when she's speaking these lines, it doesn't feel natural. स्क्रीन प्रेजेंस भी उसका अच्छा है. Screen presence भी अच्छा है, exactly. So, but when she says these lines, मेरे को खटक रहा था वो. So अब वो वही है ना, it's not her fault. Yeah. Maybe she's not. No, I mean, वही है. I think Sunny Deol is a seasoned guy, and Sunny Deol knows this genre inside and out. Yeah. So he can pull it off, but she wasn't able to. That is the only thing. Randeep Hooda was able to pull it off. I would just like to add one thing. Is that if anyone if anyone in India is remaking Game of Thrones, you have your Cersei in Regina. Oh, of course. क्या पुल ऑफ किया है. व्हाट अ ग्रेट कास्टिंग. रेजिना अभी इस साल ना विडा मुयर्ची करके जो मूवी आई थी ना, उसमें भी शी प्लेज अ वेरी सिमिलर कैरेक्टर. आई हैव नॉट सीन द फिल्म, बट आई सॉ दैट उसने की है वो फिल्म. हाँ, मैंने देखा है. उसमें भी वो उसका ऐसे ही टाइप का कैरेक्टर है, नेगेटिव. बट यहाँ पे उसका
presence, uska performance, everything down to the T is amazing. So thank you guys for watching. Yeah. Please like the video. Sharing and subscribing is obviously like a very important, but liking the video pushes the video to more people, and it helps us reach more of an audience, like a larger audience. And if you wish to contribute to us financially, more than welcome. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. feelings होती है feelings